Hey guys, this is another video from our site for you to simplify yet another difficult topic. So, as we all know, there was a question in our NEET PG 2025 also from this topic, that is the cranial nerve nucleus, and there a nerve in the posterior triangle was given, and we had to identify the nerve. The question won't come now like directly from the cranial nerve nuclei. Now what you have to do is identify the nerve first, and you have to then recall what that nerve belongs to which nucleus, that nerve and which nucleus. I am also here going to not just make you learn or revise all the topics, but also I'm going to make easier for it for you, that how do you solve all the questions related to that topic. Okay, so without further ado, what we are going to do here is, okay, you know that we have seven cranial nerve nuclei. So what we are going to do it, I made you learn the mnemonic say, ve, va, va, sa. So say, ve, va, sa. So what you have to do is, first though you have to know ki what does it mean. Okay, even if you don't remember the sequence for now it will be okay, because for now it is more important for you to learn what it means, what every column means. Okay, so now, yes, say is your somatic efferent. So this is your somatic efferent. The somatic efferent means that it is giving nerve supply to somatic motor muscles. Okay, from soma, we can know the muscles are derived from the somites. Okay, so the muscles derived from somites are extraocular muscles of the eye and the tongue. So GVE, that is general visceral efferent, gives the motor supply to the muscles of those extraocular muscles and the tongue. Now, making it more easy for you, the nerves contained in GVE column are 3, 4, 6 and 12. It follows the rule of 4. Okay, then we always try to learn all the extraocular muscles by the mnemonic all 3, SO4 and LR6. So from here we can know that the extraocular muscles are supplied by 3rd, 4th and 6th nerves. All extraocular muscles, that is superior rectus and inferior rectus and all other muscles, are supplied by 3rd cranial nerve. Then lateral rectus is supplied by 6th cranial nerve, and superior oblique is supplied by 4th cranial nerve. And your tongue is supplied by, gets its motor supply from the hypoglossal nerve, that is the 12th cranial nerve. So this is the rule of 4 that is followed by your general visceral efferent. I made you learn the mnemonic key. Okay, I made you learn the mnemonic that यहाँ पे you will just write G and G here also, और यहाँ पे बीच में S लिख देंगे. तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आर ऑलरेडी रिटन. सो रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, दिस GVE column follows the rule of 4. Okay, this is rule of 4 that is followed by it. ठीक है, तो 3, 4, 6 and 12. Okay, now moving on to the SVE column. Now what does SVE means? Okay,
Now moving ahead with your SVE column. So what does SVE does is SVE is special visceral efferent. Now these nerve also give the efferent, that is the motor supply. Okay, efferent or motor supply. But these are the these are derived from the pharyngeal arches. Okay, so these are the special ones. So these gives the pharyngeal या brachial plexus, pharyngeal या brachial arches की muscles को these give the supply. So here we have a mnemonic for pharyngeal arches. The mnemonic is 5, 7, 9, 10. 5, 7, 9, 10. Okay. And यहाँ पे I want to tell you one extra thing which might not be required here but can help you solve the other questions. That is पैरासिम्पथेटिक का क्या होता है नर्व सप्लाई. फॉर पैरासिम्पथेटिक वी लर्न इट लाइक पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई के लिए 3, 7, 9, 10. ओके, तो इससे क्या होगा दैट यू विल गेट वन हेल्प टू रूल आउट और एलिमिनेट योर ऑप्शंस. ठीक है, इससे वी विल बी एबल टू एलिमिनेट आर ऑप्शंस इन द क्वेश्चन, जहाँ हमें पता होगा कि कुछ भी सिंपथेटिक पूछा है बट उसमें से कोई भी ऑप्शन अगर है कि तुम्हारा 3, 7, 9, 10 कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है तो यू विल ईजिली बी एबल टू रूल आउट दिस, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि दिस इज़ पैरासिम्पथेटिक. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर ओरिजिनल टॉपिक. क्या था, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस SVE कॉलम. तो इसमें हमने याद कर लिया कि स्पेशल विसरल इफरेंट होता है फेरेंजियल, ये ब्रेंकियल या फेरेंजियल आर्चेस की मसल्स को सप्लाई करता है. तो ये 5, 7, 9, 10 होता है. ये हमने याद किया है कि ये होता है फेरेंजियल आर्चेस के लिए 5, 7, 9, 10 ऐसे याद किया है. बट इस कॉलम में क्या है दैट इस कॉलम में व्हेन यू मूव ऑन टू इट यू सी कि SVE में 5, 7, 9, 10 तो है ही फेरेंजियल आर्चेस का, बट 11 नर्व भी है. नाउ यू रिमेंबर इट लाइक कि न्यूक्लियस एम्बिगुअस के कंटेंट्स क्या हैं. इट कम्स इन योर SVE कॉलम और न्यूक्लियस एम्बिगुअस इज 9, 10, 11. ठीक है, सेम एज द कंटेंट इन योर जुगुलर फोरामन. जुगुलर फोरामन में भी 9, 10, 11 होता है, तो यहाँ पे भी 9, 10, 11. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट. I'm very sorry about my handwriting, but this is how it is, guys. I'm really trying to work on it so that it becomes more clearer to you all. But this is how it is right now. So just let's move on. तो अभी हम लोग आ गए हैं कि general visceral efferent. Now, when you've come to general visceral efferent, यहाँ पे ये हमें ये बता रहा है कि okay. अब हम आ गए जनरल विसरल इफरेंट पर. तो जनरल विसरल इफरेंट में क्या है, तुम्हारी जनरल विसरल इफरेंट होगा, ये स्पेशल विसरल इफरेंट था, तो ये अब जनरल विसरल इफरेंट है. ये अब विसरा को तुम्हारे मोटर सप्लाई करेगा. ठीक है, विसरा यहाँ पे इफ़ यू लाइक वांट मी टू एक्सप्लेन इट तो इट गोज एज फॉलोज कि इट गिव्स योर मोटर सप्लाई टू योर विसरा. मोटर सप्लाई टू विसरा. तो अब क्या होगा, नाउ यू हैव फॉर थर्ड एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस. अब इसमें क्या क्या आता है, यू हैव योर सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस एंड यू हैव योर इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई हम जैसे बनाते हैं. नाउ द ट्रिक टू रिमेंबर इट. नाउ वी गो ऑन टू द ट्रिक टू रिमेंबर इट, क्योंकि यहाँ हमने समझा दिया, बट द थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ टू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, तो नाउ व्हाट वी डू, यहाँ पे 3 है, 3 को उल्टा किया तो ई बन गया. दिस इज़ योर 3 को उल्टा किया तो ई बन गया. दिस इज़ योर निमोनिक टू रिमेंबर एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस. ठीक है, फिर उसके बाद सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस. सुपीरियर सलाइवरी लिखा तो एस इज़ फॉर 7, तो यहाँ पे 7 क्रेनियल नर्व होगी. फिर तुम्हारा
यहाँ पे इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस आएगा। फिर इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस के लिए 9th नर्व होती है, ठीक है। इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस किसको करता है, वो 9th न्यूक्लियस होती है। 9 से यहाँ पे हमने किया, ओके लेट्स यूज सम अदर कलर फॉर दिस सो दैट इट इज़ स्लाइटली मोर विजिबल टू अस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस किया, दिस इज़ योर इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन्फीरियर आयन से यहाँ पे लिखा 9, ये 9th नर्व के लिए होता है, तो 9 से ये हाईलाइट कर दिया, तो यू नो कि ये इन्फीरियर है। दिस इज़ योर नेमोनिक फॉर इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। तो इसमें क्या क्या है तुम्हारा, अब तुम्हारा जीवी कॉलम में है, दिस इज़ फॉर योर जीवी कॉलम, एडेंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस एंड डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। इसमें वेगस भी है, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि तुमने ई को यहाँ पे इन्वर्स किया, 3 को इन्वर्स किया तो ई बन गया, तो 3rd क्रेनियल नर्व के लिए एडेंगर वेस्टफाल हो गया। एस इज़ फॉर 7 में भी एस होता है एंड सुपीरियर में भी एस होता है, तो दिस इज़ फॉर 7 क्रेनियल नर्व। देन आई इज़ फॉर, आयन इज़ फॉर 9, यहाँ पे आयन ले लिया तो यहाँ पे 9 में भी लिखते हैं वो। देन डॉर्सल इज़ योर 4th लेटर, 4th अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो 4th अल्फ़ाबेट है तुम्हारा डॉर्सल, 4th अल्फ़ाबेट है। तो उसके बाद 4 इज़ डी एंड दिस इज़ ऑल्सो 4, तो ये हो गया कि डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ठीक है, योर 10th नर्व का न्यूक्लियस डॉर्सल वाला। तो यहाँ पे क्या क्या इवेंचुअली कंटेन हुआ तुम्हारा, 3, 7 फॉर सुपीरियर सलाइवरी, 9 फॉर इन्फीरियर सलाइवरी और 10 फॉर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। तो ये तुम्हारा हो गया पैरासिम्पैथेटिक, जो अभी हमने देखा था कि पैरासिम्पैथेटिक के लिए हमने नेमोनिक रखा है 3, 7, 9, 10। Now you might find the notes to be a little rough, but you can make your own notes simultaneously while listening to this video. तो इससे क्या होगा कि it will become like more and more easier for you to grab all the things that I'm trying to explain you all guys here, because ये head and neck में and both in neuron and in head and neck, in both the chapters ये बहुत important है, and this is especially for the upcoming INI में this topic is very very important, so that's why we are trying to just make it clear and here and now itself, ठीक है। अब यहाँ तक कर लिया, इसके बाद हमारा क्या आया, GVE तक we have finished everything. Now अब just for the sake of learning, just for the sake of simplifying it, हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था, यहाँ तक हमने पहले किया था, तो अब हमने क्या बोला था कि हमने से वे सा सा वा लिखा, से वे सा सा वा लिखा, ठीक है। अब ये जो है ये सल्कस लिमिटेंस से लिमिटेड था, यहाँ तक के न्यूक्लियाई हमने कर लिए हैं। यहाँ तक आई टोल्ड यू द ट्रिक टू रिमेंबर इट कि यहाँ पे जी लगा दो, यहाँ पे जी लगा दो, यहाँ पे एस लगा दो, यहाँ पे जी लगा दो, यहाँ पे जी लगा दो, यहाँ पे एस लगा दो, और ऐसे से हमने लास्ट के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। ये स्पेशल सोमैटिक एफरेंट है, तो ये तुम्हारे सेंसरी ये है, सेंसरी फीचर्स के लिए, सेंसरी ऑर्गन्स के लिए। इसमें क्या होता है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हियरिंग एंड बैलेंसिंग। तो ये हम याद रख सकते हैं कि सिर्फ टेस्ट के अलावा जो भी स्पेशल सेंसेस होती हैं वो SSA में होती हैं, ठीक है। ऑल द सेंसेस एक्सेप्ट टेस्ट इज़ इन SSA कॉलम, ठीक है। तो हियरिंग एंड बैलेंसिंग, हियरिंग के लिए क्या होगा, कॉक्लियर न्यूक्लियस होगा रिस्पॉन्सिबल, एंड बैलेंसिंग के लिए वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस होगा रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इतना तो हम याद रख ही सकते हैं बिकॉज हमें समझ में आ रही है ना ये चीज़, तो हम याद भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू करें तो ये रूल ऑफ 4 करता है फॉलो, तो 3, 4, 6 एंड 12, 3, 4, 6 इज़ फॉर एक्स्ट्राओक्युलर मसल और टंग इज़ फॉर 12 इज़ फॉर टंग, ठीक है। अब SVE में अगर देखें तो SVE में हमारा वो था
कि फेरेंजियल आर्चेस का था तो 5, 7, 9, 10 किया था। ठीक है, यहाँ पे 11 भी कर दिया था स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के लिए, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के लिए किया था। और इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस का पार्ट है हमारा, जस्ट लाइक जुगुलर फोरामेन 9, 10, 11। ठीक है, नाउ जीवी क्या है तुम्हारा, पैरासिम्पैथेटिक के लिए। तो यहाँ पे 3, 7, 9, 10 याद किया था। अब 3, 7, 9, 10 में क्या था, 3 को उल्टा करो तो ई आ गया। ठीक है, 7 के लिए 7, 7 एस एस सुपीरियर सलाइवरी। तो 9 के लिए 9 में आयन इज़ फॉर 9, तो ये हो गया इन्फीरियर सलाइवरी। इन्फीरियर सलाइवरी क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड। तो ये सारा सुपीरियर सलाइवरी तो हमें पता है कि सारे लैक्राइमल ग्लैंड्स को वो करता है, ठीक है, सप्लाई। लेकिन क्या होगा कि इसका एक एक्सेप्शन है कि किस सलाइवरी ग्लैंड को ये नहीं सप्लाई करता। तो एक्सेप्ट में इसका आंसर है पैरोटिड ग्लैंड, बिकॉज पैरोटिड ग्लैंड को क्या करता है, ओटिक गैंग्लियन करता है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए नया एक पेज ले लेते हैं। इन सुपीरियर सलाइवरी सबको सप्लाई करता है, गिव सप्लाई टू ऑल लैक्राइमल ग्लैंड्स एक्सेप्ट योर पैरोटिड ग्लैंड। अब ये पैरोटिड ग्लैंड को क्यों नहीं सप्लाई करता, बिकॉज पैरोटिड ग्लैंड को इन्फीरियर करता है। इन्फीरियर पैरोटिड ग्लैंड को करता है। तो पैरोटिड इज इक्वल्स टू ओटिक, यहाँ से ओटी निकाल लिया, यहाँ से ओटी निकाल लिया, तो ओटिक गैंग्लियन इज फॉर पैरोटिड ग्लैंड। दिस इज योर ट्रिक टू रिमेंबर कि पैरोटिड ग्लैंड का क्या होता है। हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक ही होता है, ओटिक गैंग्लियन भी इसने मोनिक से याद कर लिया और 9 ये भी याद कर लिया। ठीक है, आयन फॉर आयन, तो 9 क्रेनियल नर्व होगा यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने कितने कर लिए कवर, हमने यहाँ तक जीवी कर लिया, यानी कि एफरेंट्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल आर एफरेंट्स। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू ईफरेंट्स। ठीक है, तो ईफरेंट पे मूव करते हैं। नाउ वी सी कि ईफरेंट वी हैव कंप्लीटेड। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस ग्लिच, बट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 ईफरेंट कॉलम्स। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू एफरेंट्स। तो हमने क्या किया था, फिर से स्टार्ट करते हैं। जितनी बार लाइक आई टेल इट टू यू, जितनी बार भी वी रिकॉल इट उतने अच्छे से वी रिमेंबर इट। ओके, सो से वे वा सा इज व्हाट वी डिड। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ तक तो हमने कर लिया है कवर। अब हमारा क्या बचा है ये, और SSA के लिए भी मैंने बता दिया था कि सारी स्पेशल सेंसेस आर इंक्लूडेड इन SSA एक्सेप्ट टेस्ट। अब टेस्ट के अलावा क्यों टेस्ट इसमें नहीं इंक्लूडेड है, बिकॉज टेस्ट इज फॉर न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस विच विल कवर। ओके, विल कवर इट राइट नाउ। सो अब यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे G लगा दो, यहाँ पे भी G लगा दो, और फिर यहाँ पे S लगा दो। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस नाउ। अब इसका क्या मतलब है, जनरल विसरल एफरेंट, यानी कि ये विसरा से एफरेंट्स एफरेंट्स ले जाएगी। ठीक है, एफरेंट्स ले जाएगी। एफरेंट इज़ व्हाट इज़ द मोटर सप्लाई एंड एफरेंट इज़ द सेंसरी सप्लाई। तो यहाँ पे आते हैं, डायग्राम में देखते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग वी नो कि पहले तो जनरल विसरल एफरेंट आता है मीडियली, देन स्पेशल विसरल एफरेंट आता है उसके लेटरली। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनको कंबाइन कर दिया दोनों एफरेंट्स को, और यहाँ पे द ओनली न्यूक्लियस द बोथ कंटेन इज न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। अब हमने याद रख लिया इस तरीके से डायग्राम में बना के कि इन दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया, इन दोनों का सेम न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। नाउ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि हम इसमें नर्व्स याद करें तो इसमें 7, 9, 10 नर्व्स होती हैं। ठीक है, 7, 9, 10 नर्व्स होती हैं। तो 7, 9, 10 नर्व्स हमने याद तो कर लिया यहाँ पे कि हाँ दिस इज़ 7, दिस इज़ 9, दिस इज़ 10। अब क्या होगा, इसको याद भी रखना है, लेकिन इसको एग्ज़ाम में अप्लाई भी करना है, लेकिन ओनली पढ़ना।
is not enough. So here we have made our columns, and to make it easier, we know कि यहाँ पे GVA था, यहाँ पे SVA था, तो दोनों को कंबाइन कर दिया और यहाँ पे है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस. न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस कंटेन्स द नर्व 7, 9, 10. नाउ इसको याद रखने का तरीका, द निमोनिक फॉर दिस इज 9, 10, 7. N is for 9, T is for 10, so this is 10, and S is for 7, so this is 7. This is this easier, 9, 10, 7. Okay, so nuclear tractus solitarius में 9, 10, 7. So this column is also done now. Now moving to your GSA. GSA में क्या होगा? अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सारे सेंसेस कर ली, जो स्पेशल सेंसेस थी वो हमने यहाँ पे कर ली इंक्लूड. ठीक है, हमारे यहाँ पे हियरिंग, बैलेंसिंग, ये सब यहाँ पे हो गया कवर. और हमारा टेस्ट यहाँ न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, तो वो यहाँ कवर हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस कॉलम ओनली एंड दैट इज GSA. तो अब GSA में क्या करना है? GSA मीन्स कि जनरल सोमैटिक एफरेंट, यानी कि तुम्हारे सोमैटिक से मतलब यानी कि सोमा से क्या एफरेंट सप्लाई हो रहे हैं. तो इसके लिए तो ट्राइजेमिनल नर्व है. तुम्हें पता है कि फिफ्थ न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस या फिफ्थ नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशंस इन द फेस. ठीक है, और कुछ भी सेंसेशंस होते हैं, जनरल सेंसेशंस, तो उसके लिए तुम्हारा ट्राइजेमिनल नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पे वी आर लेफ्ट ओनली विद 1 कॉलम आउट ऑफ दी 7 कॉलम्स, दैट इज योर GSA. तो GSA में क्या किया? GSA में हमने देखा कि यहाँ पे हमने वेस्टिब्युलर न्यूक्लियाई कवर कर लिया था SSA में, बिकॉज इट इज़ फॉर स्पेशल सेंसेस. वेस्टिब्युलर न्यूक्लियाई इज़ फॉर बैलेंसिंग, देन योर कॉक्लियर न्यूक्लियाई इज़ फॉर हियरिंग. इसमें बोथ वेंट्रल एंड डॉर्सल न्यूक्लियाई आर कवर्ड. देन दिस इज़ योर स्पाइनल न्यूक्लियाई, मीडियन एंड लेटरल. तो एंड यहाँ पे तुम्हारा है मेन इज योर ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस. तो दिस गिव्स जनरल सेंसेशन. ट्राइजेमिनल नर्व इज अ सेंसरी नर्व विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल सेंसेशंस. तो यहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस एंड फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज इन्वॉल्व इन योर GSA कॉलम. So this is how we cover right now all the contents of the columns, all the nerves that are included in different columns also. ठीक है. So this is how we do it. Now just a quick revision of all these columns. How I made you remember these? Say, ve, वा, वा, सा, और एकदम एंड में स्पेशल सोमैटिक एफरेंट. These are here for your special senses. ये एफरेंट और इफरेंट होते हैं सल्कस लिमिटेंस से लिमिटेड. ये हो गया तुम्हारा मोटर या वेंट्रल प्लेट, और ये हो गया तुम्हारा एलर या सेंसरी प्लेट. ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया सल्कस लिमिटेंस. मीडियली टू लेटरली भी करेंगे तो ये होगा सीक्वेंस. ठीक है, फ्रॉम मीडियली टू लेटरली. यहाँ पे हमने क्या किया था? द नर्व कंटेंट्स आर रूल ऑफ 4, एक्स्ट्राओक्युलर मसल एंड टंग. तो 3, 4, 6, 12. यहाँ पे क्या था? रूल ऑफ, यहाँ पे स्पेशल वाला है, तो ये होगा क्या तुम्हारा फेरेंजियल या ब्रेंकियल आर्चेस. ठीक है, तो यहाँ पे हमने याद किया था 5, 7, 9, 5, 7, 9, 10 और 11 को भी कर देंगे इंक्लूड. देन दिस इज़ योर न्यूक्लियस एम्बिगुअस. यहाँ पे क्या था? पैरासिम्पथेटिक वाला था 3, 7, 9, 10. ठीक, यहाँ पे क्या था?
तुम्हारा इन दोनों को हमने साथ में कंबाइन कर दिया था, तो यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, दिस इज़ 9, दिस इज़ 10, दिस इज़ 7, और यहाँ पे क्या था, फिफ्थ नर्व ट्राइजेमिनल फॉर जनरल सेंसेशंस, और यहाँ पे क्या था, स्पेशल वाला तुम्हारा था। तो यहाँ पे क्या था, नहीं, आई थिंक वी आर गेटिंग समथिंग। यहाँ पे हाँ, 3 को उल्टा किया तो यहाँ पे ई एडिंगर वेस्टफाल, ये सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, यहाँ पे इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस, यहाँ पे डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। और यहाँ पे ये था ट्राइजेमिनल, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको, दिस इज योर ट्राइजेमिनल। और यहाँ पे क्या था, ऐसे सेम है, वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस, कॉक्लियर न्यूक्लियस। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने यहाँ पे सारे न्यूक्लियसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर INI-CET, हेड नेक एंड न्यूरो एंड आर्ट के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे वी हैव कवर्ड ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू लर्न दिस, और इसके कंटेंट्स भी। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़ कि क्वेश्चन अगर डायरेक्टली नहीं आता है कि लाइक आइडेंटिफाई द नर्व एंड कि ऐसे दे दिया गया कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, तो यू नो कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस एम्बिगुअस का कंटेंट होता है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस इज़ 9, 10, 11, तो फिर इसका मतलब है कि SV होगा इसका आंसर। तो इट माइट भी पॉसिबल कि डायरेक्टली हमें स्पाइनल एक्सेसरी नर्व ना दिया हो। रादर व्हाट कैन हैपन इज़ कि इस तरीके से तुम्हें कोई ये दिया हुआ हो, ठीक है, कि ऐसे कोई इमेज दी हो, और यहाँ पे वो लोग तुमसे पूछ लेंगे कि ये क्या है, ये नर्व तुम्हें दिया, वेट 1 सेकेंड। रादर क्या हो सकता है कि तुम्हें हमेशा ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हें दी है स्पाइनल। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि तुम्हें ये बता दिया जाए कि तुम्हारे पास है लाइक तुम्हें स्पाइनल ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, नहीं, तुम्हारा कोई नर्व कॉलम है, लाइक तुम्हारे पास नर्व है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, तो उसका क्या होगा, ठीक है, SV स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है, तो वो किस कॉलम से बिलोंग करती है या किस ट्रायंगल में है, तो तुम बता दोगे कि ठीक है 11th है, तो यानी कि न्यूक्लियस एम्बिगस, यानी कि SV उसका आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी कि किस ट्रायंगल में मिलती है, तो तुम बता दोगे कि ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में मिलती है। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, दिस इज़ योर PYQ। या तो ऐसा हो सकता है बिकॉज द डिफ़िकल्टी लेवल इन योर क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का फ़ोटो दे दें, उसमें दे विल मार्क दिस नर्व कि ये एक नर्व है, अब इसको आइडेंटिफाई करो। तो योर फर्स्ट स्टेप्स विल बी कि यहाँ पे स्पाइनल एक्सेसरी नर्व तो दिया नहीं होगा, यू विल फर्स्ट आइडेंटिफाई दिस नर्व। इस नर्व को आइडेंटिफाई करने के बाद यू विल टेल कि किस कॉलम में से, तो यू विल फिर नो कि हाँ ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, ये 11th नर्व है, ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस का पार्ट है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस का पार्ट है, 11th नर्व है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस का पार्ट है, तो हमें पता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस में 9, 10, 11 होता है, हमें पता है कि ये होता है SV कॉलम, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा SV। 4 ऑप्शंस वो तुम्हें क्या देंगे, अब इसके बाद 4 ऑप्शंस वो तुम्हें देंगे कि तुम्हारे ऑप्शंस हैं, ये वाली नर्व तुमने आइडेंटिफाई करी, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, अब वो तुम्हें दे देंगे 4 ऑप्शंस, 1, 2, 3, 4। उसमें एक में वो लिखेंगे कि ठीक है, अब हम बताते हैं तुम्हें कि कैसे तुम्हें सॉल्व करना है इसको,
ठीक है, तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना होगा। मान लेते हैं कि ये तुम्हारा ऑप्शन। अब अगर इसमें ऐसे से दिया है फोर्थ ऑप्शन में, तो इसको तुम डायरेक्टली रूल आउट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि तुम्हें पता है कि ऐसे से इज जस्ट फॉर स्पेशल सेंसेस। टेस्ट के लिए तो तुम्हारा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस होता है, तो ये तो हट गया, टेस्ट तो नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा हेयरिंग और बैलेंसिंग भी नहीं होगा, बिकॉज ये उसके लिए है नहीं। तो तुम एसएस को तो एसएसए को तो डायरेक्टली रूल आउट कर सकते हो कि ये हट गया, दिस इज़ रूल आउट कम्प्लीटली। उसके बाद ये तुम्हारे बचे, तो ये तुम्हारे सारे इफ्रेंट ही हैं। इसमें तुमने करा कि पहले में तो तुम्हारा जीएसई में तो तुम्हारा रूल ऑफ 4 होता है, तो यानी कि 3, 4, 5 और 12 होगा, तो इसको भी फिर हटा दिया कि ये तो नहीं होगा। फिर तुम्हारा जीवी आया। फिर जीवी में क्या होता है, इसमें तो तुम्हारा आ गया कि हाँ ठीक है, ये तो एसवी में तो तुम्हारा 5, 5, 7, 9, 10, 11 होता है। तो ये 9, 10, 11 न्यूक्लियस एम्बिगुअस का पार्ट होता है उसमें से, और ये ठीक है। फिर उसके बाद जीवी में क्या होता है, जीवी में तुम्हारा 3, 7, 9, 10 होता है, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक वाला होता है। तो तुम्हें पता है कि जीवी में भी नहीं हो सकता है, बिकॉज जीवी में तो तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक 3, 7, 9, 10 होता है, 11 तो होता ही नहीं है। तो इस तरीके से तुम सारे ऑप्शंस जब रूल आउट कर दोगे, देन ऑल्सो यू कैन कम टू योर आंसर कि इस इतना सब कुछ रूल आउट कर दिया, सारी ट्रिक्स बता दी। इससे ज़्यादा तो आई ऑल्सो डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। जितना मुझे पता था सब बता दिया, सारी अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स तुम्हारे ऊपर झोंक दी। तो स्पाइनल एक्सेसरी है तो जीवी, तो SVE ही होगा। सारा रूल आउट कर दो, देन यू विल नो कि SVE ही हो। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे गाइस।